Assalamu alaikum. It is the second part of basics definitions of chemistry from chapter number 1 fundamental of chemistry. In this we will discuss about elements. So elements are basically derived from chemical properties of matters that have already been discussed in my last video. So let's have a look on briefly introduction of elements. In the early ages you can say that before the 19th century only 9 elements have been discovered. The 9 elements that have been discovered are carbon, gold, silver, mercury, tin, lead, and copper, iron, and sulfur. These are the major 9 elements that have been discovered in before the 19th century. At that time it was considered that elements were the substances that could not be broken down into simpler unit by ordinary chemical process. It means that the elements that have been discovered that cannot be broken down into simpler unit. सो जो ये 9 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके थे तब ये माना जाता था कि इन एलिमेंट्स को हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते किसी भी केमिकल प्रोसेस के थ्रू या किसी भी केमिकल मेथड के थ्रू हम इनको सिंपलर यूनिट में ब्रेक नहीं कर सकते. एंड अंटिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी 63 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड. It means that during the 19th century the 63 elements have been discovered and now 118 elements have been discovered. 118 एलिमेंट्स अब डिस्कवर्ड हो चुके हैं जिसमें से 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली तौर पर पाए जाते हैं. सो द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट इज़ दैट इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल substance by ordinary chemical means. It means that जो केमिकल्स की एलिमेंट्स की जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो ये है कि इसमें जो एटम हैं वो सेम टाइप के हैं, उनके एटॉमिक नंबर भी एक जैसे हैं और हम उनको किसी भी सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते या उनको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते बाय केमिकल मेथड. हम उनको ब्रेक डाउन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ईच एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम डेट हैव वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़. क्योंकि हर एलिमेंट जो होता है वो एक यूनिक टाइप के एटम से मिलकर बना होता है. इस उनकी प्रॉपर्टीज़ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इस वजह से हम इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते. And after that elements are also present in our nature. Some of them are in free form and some of them are in combined form. These are the naturally occurring elements and their percentage are also different in earth crust, oceans and atmosphere. For example, oxygen, silicon, hydrogen, nitrogen, argon, aluminium. These are the naturally occurring elements. For example, oxygen percentage in the earth crust is 47 and in ocean oxygen is 86% and in atmosphere oxygen is 21%. And in our periodic table elements are of different types. Elements may be solid, liquid or gases. Majority of elements are solids. For example, sodium, copper, zinc, gold. These are in solid form elements. And there are few elements which occur in liquid form. For example, mercury, bromine, etc. And some of few elements exist as gases. For example, nitrogen, oxygen, chlorine, hydrogen. These are in the form of gas. On the basis of their properties, elements are divided into metals and non-metals and metalloids. मेटल्स उनमें आ जाते हैं जो हमारे सॉलिड फॉर्म में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो मेटल्स में आ जाते हैं और जो हमारे गैसेस फॉर्म में एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो हमारे नॉन मेटल्स में आ जाती हैं. एंड सॉलिड और गैसेस के दरमियान में जो आते हैं वो हमारी मेटलॉइड में आ जाते हैं. एंड अबाउट 80% ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल्स. इट इज़ ऑब्वियस दैट कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड पर कंसिस्ट करते हैं. सो दैट इज़ वाई 80% ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल्स. And it is interesting for all of you to see that major part of a living body, any living body, is made up of water, 65% to 80% by mass. 6 elements our body contains, 99%, namely oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium and phosphorus. It means different percentages of these elements. Oxygen 65%, carbon 18%, hydrogen
10%, nitrogen 3%, calcium 1.5%, and phosphorus 1.5%, and the remaining 1% contain other elements: potassium, sulfur, magnesium, and sodium, 0.8% of our body mass, and whereas copper, zinc, fluorine, chlorine, iron, cobalt, manganese consist only 0.2% of our body mass. Elements are represented by symbols which are abbreviations for the name of that element. A symbol is taken from the name of that element in English, Latin, Greek, or German. If it is one letter, it will be capital as H for hydrogen, N for nitrogen, and C for carbon. The H, N, and C are the capital letters. And in case of two letters symbol, only first letter is capital and the second letter is small. For example, Ca for calcium, Na for sodium, and Cl for chlorine. इसके बाद एलिमेंट्स वैलेंसी भी रखते हैं जो कि किसी भी एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टी होती है. इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट. इट मीन्स दैट कि एक एलिमेंट की कितनी कैपेसिटी है कि वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सके, बॉन्ड बना सके. अब ये बॉन्ड किस तरह बनाता है कि ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स पर जो कि उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट हैं. आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे एक एलिमेंट उतने ही बॉन्ड बनाएगा. ठीक है. For example, in simple covalent compound, valency is the number of hydrogen atom which combine with one atom of that element, or the number of bond formed by one atom of that element. For example, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, नाइट्रोजन एंड कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है. ये यहाँ पे डिफरेंट बॉन्ड क्यों और कैसे बनाता है, ये क्योंकि ये डिपेंड करता है आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर डिपेंड करता है. अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है. इसके आउटर मोस्ट शेल में उसके पास होते ही 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा. क्लोरीन इससे इजीली 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है एज़ कम्पेयर टू अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे. इसलिए हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ इजीली बॉन्ड बना देता है और क्लोरीन के साथ ये 1 ही बॉन्ड बनाता है. इस तरह ऑक्सीजन के साथ ये 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन के साथ 3 बनाता है और कार्बन के साथ 4 बनाता है. क्लोरीन के साथ 1 बॉन्ड बनाता है तो इसकी क्लोरीन की वैलेंसी 1 होगी. ऑक्सीजन के साथ 2 बनाता है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगी. नाइट्रोजन के साथ 3 बनाता है तो इसकी वैलेंसी 3, और कार्बन के साथ 4 बनाता है तो कार्बन की वैलेंसी 4 होगी. इन सिंपल आयनिक कंपाउंड में वैलेंसी की डेफिनेशन इस तरह है कि वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. अब ये ऑक्टेट रूल क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना ऑक्टेट रूल कहलाता है. ठीक है. अब ऑक्टेट रूल को किस तरह फॉलो किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 से लेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना प्रेफर करेगा एज़ कम्पेयर टू कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे एलिमेंट से ले. और अगर किसी भी एलिमेंट के पास 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मीन्स टू से 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो प्रेफर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एलिमेंट से ले गेन कर ले. इस तरह अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट किया जा सकता है. एलिमेंट्स अपने बॉन्ड किस तरह बनाता है कि अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 4 से लेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो प्रेफर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना, और अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो प्रेफर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना. ठीक है. इस तरह इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग और लॉसिंग होती है इन ऑक्टेट रूल में. On the other hand, elements having 5 or more than 5 electrons in their valence shell gain electrons to complete their octet. अगर कोई भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो प्रेफर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एलिमेंट से गेन करने के, क्योंकि 5, 6 और 7 इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू कि आप 3 to 1 को गेन कर लें, 3 to 1 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लें अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए. फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन हैव 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल. दे गेन 3 to 1 इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट.
hence they show valency of 3, 2, 1 respectively. And now we will discuss about the definition of radical. A radical is a group of atom that have some charge. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आपका एलिमेंट है, उसके ऊपर चार्ज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो जाए, तो हम उसको उस चार्ज को रेडिकल कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव. कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक से ज़्यादा वैलेंसीज भी शो करते हैं. दे हैव वेरिएबल वैलेंसीज. फॉर एग्जांपल इन फेरस सल्फेट द वैलेंसी ऑफ आयरन इज़ 2. इन फेरिक सल्फेट द वैलेंसी ऑफ आयरन इज़ 3. जनरली जो आयरन का जो लैटिन और ग्रीक नेम है वो फेरम है. अब उन्होंने इसमें मॉडिफाइड की, किस तरह मॉडिफिकेशन की है कि अगर लोअर वैलेंसी आई है तो उन्होंने ये फेरम के एंड को OUS से रिप्लेस कर दिया, फेरस बना दिया. एंड अगर हायर वैलेंसीज आई हैं तो उन्होंने फेरम के एंड को IC से रिप्लेस कर फेरिक बना दिया है. सो ये कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट वैलेंसीज भी शो कर सकते हैं. So this is our today's lecture, and hope so this video will be helpful for all of you. Keep watching and supporting. Allah Hafiz.